السلام علیکم ناظرین، پروگرام چائنا ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا ریاض۔ یہ پروگرام GNN اور چائنا میڈیا گروپ کے تعاون سے آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، پروگرام میں ہم چین کی کامیابیوں کی بات کریں گے، اس حوالے سے دلچسپ رپورٹس بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں پہلے سیگمنٹ چائنا دس ویک سے۔ چین کے صدر شی جن پنگ کو کمیونسٹ پارٹی آف چائنا میں شامل ہوئے 52 برس مکمل ہو چکے ہیں۔ ایک دور افتادہ دیہات میں کسانوں کے ساتھ زندگی گزارنے سے لے کر چین کے اعلیٰ ترین منصب تک پہنچنے کا ان کا سفر عوامی خدمت، دیہی ترقی اور فلاحی سوچ سے جڑا رہا ہے۔ شی جن پنگ کا کہنا ہے کہ اقتدار کا اصل مقصد عوام کی خدمت اور ان کے مسائل کا حل ہے۔ آج بھی ان کی سیاسی فکر کا مرکز عوامی مفاد اور قومی ترقی کو قرار دیا جاتا ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ کو کمیونسٹ پارٹی آف چائنا میں شمولیت اختیار کیے 52 برس مکمل ہو چکے ہیں، لیکن عوامی خدمت اور عوامی فلاح کا جو عزم انہوں نے نوجوانی میں اپنایا تھا وہ آج بھی ان کی سیاسی سوچ کا مرکز ہے۔ شی جن پنگ نے 1974 میں شمال مغربی چین کے صوبے شانشی کے دور افتادہ گاؤں لیانگ جیاہے میں ایک تعلیم یافتہ نوجوان کے طور پر کمیونسٹ پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ ان کا تعلق ایک انقلابی خاندان سے تھا، تاہم انہوں نے گاؤں میں کسانوں کے ساتھ رہ کر کھیتوں میں کام کیا اور دیہی زندگی کے مسائل کو قریب سے دیکھا۔ بعد ازاں وہ گاؤں کے پارٹی سیکرٹری منتخب ہوئے اور مقامی لوگوں کی زندگی بہتر بنانے کے لیے متعدد منصوبوں کی قیادت کی۔ شی جن پنگ کے مطابق لیانگ جیاہے ہی وہ مقام تھا جہاں انہوں نے اپنی زندگی کا راستہ منتخب کیا اور عوام کے لیے عملی کام کرنے کا عہد کیا۔ 1975 میں سنگھوا یونیورسٹی میں داخلے تک ان کے سیاسی نظریات اور کمیونزم پر یقین مزید مضبوط ہو چکا تھا۔ گاؤں کے ایک مقامی رہنما سے لے کر چین کے اعلیٰ ترین منصب تک پہنچنے والے شی جن پنگ مسلسل اس بات پر زور دیتے رہے ہیں کہ اقتدار عوام کی خدمت کے لیے ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا ہمیشہ عوام کے بنیادی مفادات کی نمائندہ رہی ہے اور عوام کے ساتھ خوشی اور مشکلات دونوں میں شریک رہتی ہے۔ چین میں ریلوے نظام نے رواں سال کے پہلے 5 ماہ کے دوران سفر کے نئے ریکارڈ قائم کر دیے۔ تقریباً 1 ارب 97 کروڑ ریلوے ٹرپس اس بات کا ثبوت ہے۔ ملک میں سفری سہولیات تیزی سے بہتر ہو رہی ہیں۔ ویزا فری پالیسی، جدید ترین نیٹ ورک، خصوصی سیاحتی ٹرینوں اور مسافر دوست اقدامات نے نہ صرف مقامی بلکہ غیر ملکی مسافروں کی تعداد میں نمایاں اضافہ کیا ہے۔ چین میں رواں سال کے پہلے 5 ماہ میں ریل کے سفر کے حوالے سے نئے ریکارڈز قائم ہوئے ہیں۔ چائنا اسٹیٹ ریلوے گروپ کے مطابق جنوری سے مئی 2026 کے دوران ملک بھر میں تقریباً 1 ارب 97 کروڑ ریلوے ٹرپس ہوئے، جو گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 5.7% زیادہ ہے۔ یہ تعداد چین کی ریلوے تاریخ میں کسی بھی سال کے پہلے 5 ماہ کا نیا ریکارڈ بھی ہے۔ ماہرین کے مطابق اس اضافے میں چین کی ٹرانزٹ ویزا فری پالیسی نے اہم کردار ادا کیا ہے، جس کے باعث غیر ملکی سیاحوں اور مسافروں کی آمد میں نمایاں اضافہ ہوا، جن کے سفری ٹرپس کی تعداد اس دوران 1 کروڑ سے زائد رہی، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 35.5% زیادہ ہے۔ چین لاؤس ریلوے کے ذریعے 1,67,000 مسافروں نے سفر کیا، جبکہ گوانگجو، شنزن اور ہانگ کانگ کو ملانے والی تیز رفتار ریلوے لائن پر 1 کروڑ 45 لاکھ سے زائد سرحد پار ٹرپس ریکارڈ کیے گئے۔ سیاحت کے فروغ کے لیے ملک بھر میں 1400 خصوصی سیاحتی ٹرینیں چلائی گئیں اور بزرگ مسافروں کے لیے رعایتی کرایوں اور پالتو جانوروں کے ساتھ سفر جیسی سہولیات بھی متعارف کرائی گئی ہیں، جو چین کے ریلوے نظام کو مزید جدید اور مسافر دوست بنانے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ فلم سازی کی دنیا میں مصنوعی ذہانت نئی تبدیلیاں لا رہی ہے اور چین کا شہر شنگھائی اس شعبے میں نمایاں کردار ادا کر رہا ہے۔ جدید AI ٹیکنالوجی کی بدولت فلمی مناظر کی تیاری کے وقت اور لاگت میں نمایاں کمی آئی ہے۔ ماہرین کے مطابق مستقبل میں AI اور تخلیقی صنعتوں کا امتزاج فلم سازی کو مزید تیز، مؤثر اور جدید بنائے گا۔ فلم سازی کی دنیا تیزی سے بدل رہی ہے۔ چین کا شہر شنگھائی اس تبدیلی کی قیادت کرتا اور AI فلمی صنعت کا اہم حصہ بنتا دکھائی دے رہا ہے۔ شنگھائی انٹرنیشنل فلم فیسٹیول کے دوران منعقدہ ایک ورکشاپ میں شرکاء نے دیکھا کہ گرین اسکرین اور ورچوئل اسٹوڈیوز کی مدد سے ایک شخص کو تلوار پر اڑتے ہوئے دکھانے والی ویڈیو محض 10 منٹ میں تیار کی جا سکتی ہے۔ ماہرین کے مطابق جدید AI ورک فلو نے 3D ایسٹس کی پیچیدہ تیاری کے مراحل کو بڑی حد تک کم کر دیا ہے۔ اب صرف ایک سادہ ماڈل کی مدد سے اداکار کو منظر میں رکھا جاتا ہے، جبکہ روشنی، سائے، بصری اثرات اور دیگر تکنیکی عناصر کو AI خود مربوط کرتی ہے۔
शंघाई के सोंगजियांग ज़िले में कायम शंघाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी फिल्म सिटी इस तब्दीली का मरकज़ बन चुका है। यहाँ 8,000 से ज़ायद फिल्म और टीवी कंपनियाँ मौजूद हैं, जबकि AI तख्लीकी माहौलियाती मरकज़ गुज़िश्ता एक साल में 50 से ज़ायद कंपनियों को अपनी जानिब मुतवज्जे कर चुका है। हुक्काम का कहना है कि कंप्यूटिंग पावर, डेटा, मॉडल्स, फंडिंग और तरबियत याफ्ता अफरादी क़ुव्वत की फराहमी के ज़रिए फ़िल्म और टेक्नोलॉजी के इम्तिजाज को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा ताकि मुस्तक़बिल की फ़िल्म साज़ी ज़्यादा तेज़, मुअस्सर और मयारी बन सके। चीन में हर साल 1 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा अफराद रज़ाकाराना तौर पर खून अतिया करते हैं। खून के अतिया के आलमी दिन पर हुकूमत ने इस अहम इंसानी खिदमत को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए ख़ुसूसी तक़रीबात का इनेकाद किया। माहिरीन का कहना है रज़ाकाराना खून अतिया न सिर्फ जानें बचाता है बल्कि मुआशरे में हमदर्दी और समाजी ज़िम्मेदारी के जज्बे को मज़ीद मजबूत बनाता है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक चीन के खून के अतिये के रज़ाकाराना निज़ाम के तहत हर साल 1 करोड़ 50 लाख से ज़ायद अफराद खून अतिया करते हैं। रवां साल खून के अतिये के आलमी दिन के मौके पर चीन के कौमी सेहत कमीशन ने 8 दीगर सरकारी इदारों के साथ मिलकर एक खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया और आवाम से रज़ाकाराना तौर पर खून अतिया करने की अपील जारी की। चीन में तिब्बी इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाला तमाम खून सेहतमंद शहरियों के रज़ाकाराना और बिला मुआवजा अतियात से हासिल किया जाता है। मुल्क खून के अतियात के हजम, अतिया करने वालों की तादाद और खून की हिफाजत के मयार के लिहाज से दुनिया के नुमाया ममालिक में शुमार होता है। हुकूमत की जानिब से इस अमल की हौसला अफजाई के लिए मुख्तलिफ मराद भी दी जा रही हैं। मुल्क भर से 30 लाख से ज़ायद रज़ाकाराना खून अतिया करने वालों को एजाज़ात से नवाजा जा चुका है, जबकि कई सूबों में इन्हें मुफ्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सरकारी पार्कों में मुफ्त दाखिले, सरकारी अस्पतालों में रजिस्ट्रेशन फीस से इस्तिस्ना और ज़रूरत पड़ने पर खून की फराहमी में तरजीही सहूलत भी दी जाती है। चीन के त्यांगोंग खलाई स्टेशन पर मौजूद खलाबाज साइंसी तहकीक के नए मराहिल तय कर रहे हैं। हयातियाती उलूम, खलाई तिब और माइक्रो ग्रेविटी पर होने वाले तजुर्बात मुस्तक़बिल की तवील मुद्दती खलाई परवाज़ों के लिए अहम मालूमात फराहम करेंगे। ये तहकीकात न सिर्फ खलाई साइंस बल्कि ज़मीन पर तिबी तहकीक के लिए भी मुफीद साबित हो सकती है। चीन के त्यांगोंग खलाई स्टेशन पर मौजूद शेंजू 23 मिशन के खलाबाज अपने मिशन के तीसरे हफ्ते में साइंसी तहकीक और तजर्बात में मसरूफ़ हैं। ये तहकीकात मुस्तक़बिल की तवील मुद्दती खलाई परवाज़ों के लिए अहम मालूमात फराहम करेंगी। खलाबाजों ने हयातियाती उलूम, मटीरियल साइंस, माइक्रोग्रेविटी, फ़िज़िक्स, खलाई तिब और नई टेक्नोलॉजीज़ पर काम किया। हाल ही में उन्होंने खुलियाती तहकीक का एक अहम मरहला मुकम्मल किया, जिसमें खुलियाती नमूनों का मुशाहिदा और तहफ़्फ़ुज़ शामिल था। खुसूसी साइंसी ग्लू बॉक्स की मदद से जिगर के खलियात के नमूने जमा किए गए ताकि ये जांचा जा सके कि माइक्रो ग्रेविटी जिगर के मेटाबॉलिज्म को कैसे मुतासिर करती है। इस तहकीक से फैटी लिवर जैसे मसाइल की रोकथाम में मदद मिल सकती है। दूसरी जानिब खलाबाजों ने खलाई ताबकारी के असरात जांचने के लिए मसनूई एंजाइम्स, बैक्टीरिया और पौधों के बीजों को 5 माह के तजर्बे के लिए नस्ब किया। उन्होंने हंगामी दबाव में कमी की मश्क, स्टेशन की देखभाल, माहौलियाती निगरानी और हिफाजती आलात का मुआयना भी मुकम्मल किया ताकि किसी भी गैर मुतवक्किल सूरत हाल से निपटा जा सके। चीन में इंसान नुमा रोबोट्स की टेक्नोलॉजी तेजी से तरक्की कर रही है। बैक फ्लिप, मैराथन और खेलों के मुजाहिरों के बाद अब तवज्जो उन्हें अमली शोबों में मुतारिफ करवाने पर मरकूज है। हुकूमत और सनत मिलकर ऐसे रोबोट्स तैयार कर रहे हैं जो फैक्ट्रियों, अस्पतालों और गोदामों में हकीकी काम सरअंजाम दे सके। कभी बैक फ्लिप लगाते, कभी मैराथन में दौड़ते और कभी टेबल टेनिस खेलते इंसान नुमा रोबोट्स आजकल चीन में सोशल मीडिया की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये रोबोट्स वाकई इंसानों के साथ मिलकर अमली काम भी कर सकते हैं? चीनी माहिरीन का कहना है कि अगरचे इंसान नुमा रोबोट्स ने हैरानकुन पेशरफ्त की है, लेकिन इन्हें रोज़मर्रा ज़िंदगी और काम की जगहों पर मुकम्मल तौर पर मुतारिफ कराने के लिए अभी मज़ीद वक्त दरकार है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक 2025 में चीन में तकरीबन 17,000 ह्यूमनॉइड रोबोट्स तैयार किए गए, जबकि इस शोबे में 140 से ज़ायद कंपनियां सरगर्म हैं। अब तवज्जो सिर्फ मशीनों की जिस्मानी सलाहियतों पर नहीं बल्कि इन्हें हकीकी दुनिया को समझने, फैसले करने और नए काम सीखने के काबिल बनाने पर मरकूज है। इसी मकसद के तहत चीन ने एक कौमी मंसूबा शुरू किया है जिसके जरिए आइंदा 6 माह में इंसान नुमा रोबोट्स को फैक्ट्रियों, गोदामों और अस्पतालों जैसे अमली शोबों में मुतारिफ कराने की कोशिश की जाएगी। मंसूबे के तहत साल के इख्तिताम तक 100 से ज़ायद जदीद एप्लीकेशंस तैयार करने और कम अज़ कम 10,000 रोबोट्स को अमली कामों में इस्तेमाल करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। बीजिंग का गैर मादी सकाफती विरसा मरकजी रवायती सकाफत और जदीद टेक्नोलॉजी के इम्तजाज की बेहतरीन मिसाल बन चुका है। यहाँ सयार, MR हेडसेट्स, रोबोट्स और AI टेक्नोलॉजी की मदद से चीनी सकाफत को एक नए अंदाज में दरियाफ्त कर रहे हैं।
इस मुनफरिद तजुर्बे ने गैर मुल्की सयाहों की दिलचस्पी में नुमाया इजाफा किया है। बीजिंग के गैर मादी सकाफती वर्से के तजर्बाती मरकज़ में गैर मुल्की सयाहों की दिलचस्पी मुसलसल बढ़ रही है। इस रिवायती तर्ज के खूबसूरत अहाते में दाखिल होते ही सयाह जदीद मिक्स्ड रियलिटी यानी MR हेडसेट्स की मदद से बीजिंग के तारीखी सेंट्रल एक्सिस का वर्चुअल सफ़र कर सकते हैं। तकरीबन 7.8 किलोमीटर तवील इस तारीखी महवर की सैर के साथ साथ सयाह चीनी खत्ताती, दरियाओं में रिवायती लालटेनें बहाने और आतिशबाजी जैसे सकाफती तजर्बात भी अमली तौर पर कर सकते हैं। इस मरकज़ में ताइची की मश्क अब सिर्फ इंसानी असातिज़ा ही नहीं बल्कि जदीद रोबोट्स भी पेश करते हैं जो रिवायती फ़न और जदीद साइंस का मुनफरिद इम्तिजाज दिखाते हैं। सयाह AIGC इंटरैक्टिव जोन में अपनी तस्वीर को रिवायती चीनी सकाफत के रंगों में ढालकर यादगारी तहाइफ भी तैयार कर सकते हैं जिनमें बीजिंग ओपेरा समेत मुख्तलिफ सकाफती अनासर शामिल होते हैं। सूबा शामसी के एक किसान खानदान की 3 नस्लें चीन की ज़राई तरक्की की जिंदा मिसाल बन गईं। जदीद मशीनरी, ज़राई तालीम और नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल ने पैदावार में नुमाया इजाफा किया है। ये कहानी जाहिर करती है कि रवायती ज़राअत किस तरह जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक तरक्की कर रही है। शांशी में एक किसान खानदान की 3 नस्लें चीन की ज़राई तरक्की की अक्कास हैं। 68 साला डिंगशिंग मिन ने 1998 में एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव कायम किया जो अब उनके बेटे ने संभाल रखा है। उनके पोते डिंग जिहुई ने ज़राई तालीम मुकम्मल की और जदीद टेक्नोलॉजी बशमूल बीजों पर हिफाजती कोटिंग मुतारिफ करवाई जिससे पैदावार में इजाफा हुआ। दादा के मुताबिक पहले छोटी मशीन रोज़ाना सिर्फ 10.8 मुँह ज़मीन की कटाई करती थी जबकि जदीद मशीनें अब 100 से 200 मुँह फी दिन कटाई कर सकती हैं। ये तब्दीली उस वक्त सामने आई जब चीन में मौसम गर्मा की गंदम की कटाई तेज़ रफ्तारी से जारी है। वजारत ज़राअत के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते तक तकरीबन 1.92 करोड़ हेक्टेयर रकबे पर कटाई मुकम्मल हो चुकी है जो कि 85% बनता है। नौजवान डिंग जिहुई का कहना है कि ज़राअत टीम वर्क है और वो मज़ीद नौजवानों को देहात वापस लाकर चीन की फूड सिक्योरिटी में किरदार अदा करना चाहते हैं। ये कहानी दरांती से स्मार्ट मशीनरी तक के सफ़र को जाहिर करती है। चीन ने समुद्री खुराक की पैदावार के शोबे में एक और अहम पेशरफ्त करते हुए जदीद नीम ज़ेर-ए-आब फिश फार्मिंग प्लेटफॉर्म का आगाज कर दिया। ये मंसूबा न सिर्फ मछलियों की पैदावार बढ़ाएगा बल्कि सयाहत और तफरीही सरगर्मियों को फरोग देगा जिससे मकामी मईशत को फ़ायदा पहुँचने की तवक्को है। चीन समंदरी खुराक की अफजाइश के शोबे में एक और अहम संगमीर उबूर कर चुका है। जनूबी चीन के सूबे हाइनान के शहर सानिया में मुल्क के सबसे बड़े नीम ज़ेर-ए-आब मरबूत फिश फार्मिंग प्लेटफॉर्म शिनहुआन 1 ने बाज़ाब्ता तौर पर काम शुरू कर दिया है और इसमें मछलियों के बच्चों की पहली खेप भी छोड़ दी गई है। ये जदीद प्लेटफॉर्म 64,000 मकब मीटर आबी गुंजाइश रखता है जो तकरीबन 20 ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल्स के बराबर है। हुकाम के मुताबिक ये सालाना 4,000 टन मछली पैदा करने की सलाहियत रखता है जिससे समंदरी खुराक की पैदावार में नुमाया इजाफा मुतवक्के है। माहिरीन के मुताबिक तकरीबन 10 माह बाद ये मछलियाँ औसतन निस्फ किलोग्राम से ज़ायद वज़न हासिल कर लेंगी और सारिफीन तक पहुँचने के लिए तैयार होंगी। मंसूबे के जिम्मेदारान का कहना है कि मछलियों की अफजाइश के साथ साथ ये प्लेटफॉर्म सयाहती सरगर्मियों, तफरीही माहीगीरी और समंदरी सैर व तफरीह को भी फरोग देगा। यूं ये मंसूबा आबी ज़राअत और सयाहत के इम्तिजाज की एक नई मिसाल बनेगा। तो अब आपको बताएंगे चीन में ड्रैगन बोट फेस्टिवल न सिर्फ सकाफती जोश व खरोश का मजहर है बल्कि मकामी मईशत और सयाहत के फरोग का भी जरिया बन रहा है। मुख्तलिफ शहरों में मुनक्किद होने वाली ड्रैगन बोट रेसों ने हज़ारों शायकीन और सयाहों को अपनी जानिब मुतवज्जे किया जबकि जदीद टेक्नोलॉजी ने इन तकरीबात को मज़ीद दिलचस्प बनाया। चीन में ड्रैगन बोट फेस्टिवल के रिवायती त्यौहार के मौके पर मकामी मईशत और सयाहत को भी फ़रोग़ हासिल हुआ है। जनूबी चीन के शहर शेंजिन के लोंगयुआन इलाके में मुनक्किद होने वाली ड्रैगन बोट रेस में 16 टीमों ने हिस्सा लिया जिन्होंने 300 मीटर के दोहरी लेन वाले मुकाबले में अपनी महारत का मुजाहिरा किया। मुकाबले की खास बात यह थी कि इसमें मकामी और दीगर इलाकों की टीमों के साथ साथ बैरून मुल्क से आने वाली टीमें भी शरीक थीं, जबकि बच्चों की एक ड्रैगन बोट टीम ने भी हाज़रीन की भरपूर तवज्जो हासिल की। इस दौड़ में मसनूई ज़हानत पर मबनी स्मार्ट टूर गाइड्स और हाई डेफिनेशन लाइव स्ट्रीमिंग जैसी जदीद सहूलियात भी फराहम की गई थीं। दूसरी जानिब मशरक़ी चीन के सूबे फूजियान के शहर जियांगजू में 16 टीमों ने 400 मीटर तवील सीधे ट्रैक पर सख्त मुकाबला किया जहां दरिया के किनारे कायम नज़ारा गाहें तमाशाइयों से भरी रहीं। चीन में ड्रैगन बोट फेस्टिवल की रवायात जदीद दौर में भी अपनी मकबूलियत बरकरार रखे हुए हैं। इस साल रिवायती खुशबूदार ठेलियाँ नए डिज़ाइन और तख्लीकी अंदाज के साथ लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन गई।
हॉन्गचू की तारीखी गलियों में सकाफत, रिवायती चीनी तिब और जदीद तख्लीकी सोच का ऐसा इम्तजाज देखने को मिला कि जिसने नौजवानों और बच्चों को भी अपनी जानिब मुतवज्जो किया। माहिरीन के मुताबिक ये रुझान कदीम सकाफती रिवायात को नई नस्ल तक मुंतकिल करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। चीन में ड्रैगन बोट फेस्टिवल पर रिवायती खुशबूदार थैलियों ने, जिन्हें सदियों से त्यौहार की अलामत समझा जाता है, एक नए और दिलकश अंदाज में लोगों की तवज्जो हासिल की। मशरक़ी चीन के सूबे ज़ीजियांग के दारुल हुकूमत हांगचू की तारीखी हेफांग स्ट्रीट इन दिनों रंगों, खुशबुओं और सकाफती मसनूआत से सजी हुई है। यहाँ रिवायती डिश ज़ोंगज़ी बहुत मकबूल है। कदीम चीनी तिब के मारूफ इदारे फांग हुई चुंग तांग ने कार्टून किरदारों और रिवायती चीनी जड़ी बूटियों को यकजा करते हुए मुनफरिद खुशबूदार थैलियाँ मुतारिफ कराई हैं। इदारे के मुताबिक गुज़श्ता एक माह के दौरान ये नई मसनूआत मजमूई फ़रोख्त का तकरीबन 47% हिस्सा बन चुकी हैं। दूसरी जानिब बाज़ डिज़ाइन कदीम सकाफती वरसे से मुतासिर हैं। ख़ास तौर पर वुनहोंग के तारीखी गारों की दीवारों पर मौजूद रंगीन नक्श और उड़ती हुई अप्सराओं के मलबूसात वाली थैलियाँ खरीदारों की तवज्जो का मरकज़ रहीं। हांगचू में स्कूलों में इस हवाले से होने वाली सरगर्मियों में बच्चों ने अपने हाथों से ये खुशबूदार थैलियाँ बनाकर ड्रैगन बोट फेस्टिवल की रिवायात और चीनी सकाफत से अमली तौर पर शनासाई हासिल की और यूँ कदीम रिवायात और जदीद तख्लीकी सोच ने मिलकर त्यौहार को एक नई जिंदगी दी। जनूबी चीन के शहर ज़ुबार में ड्रैगन बोट फेस्टिवल के मौके पर रिवायती कश्ती रानी के मुकाबलों ने शायकीन को खूब महसूस किया। ग्वांगडोंग, हांगकांग और मकाओ से आने वाली टीमों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, जबकि सकाफती कार्निवल ने तकरीब को मजीद रंगीन बनाया। रिवायती खेल, मकामी खाने और सकाफती नुमाइशों ने इस त्यौहार को एक मुकम्मल अवामी जश्न में तब्दील किया। ड्रैगन बोट फेस्टिवल पर जनूबी चीन के शहर चुहाई में रिवायती ड्रैगन बोट रेसों का शानदार आगाज हुआ, जहां ग्वांगडोंग, हांगकांग और मकाओ से आने वाली 20 टीमों के 600 से ज्यादा खिलाड़ियों ने अपनी महारत और टीम वर्क का मुजाहरा किया। मुकाबले के आगाज पर रंग बिरंगी ड्रैगन बोट्स तीर की मानिंद पानियों में दौड़ने लगी और अगले हिस्से में मौजूद ढोलची अपनी ताकतवर और मुसलसल थाप के साथ चप्पू चलाने वाले खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते रहे। किनारों पर मौजूद तमाशाइयों की बुलंद आवाजों में हौसला अफजाई, ढोल की गूंज और खिलाड़ियों के नारों ने माहौल को मजीद पुरजोश बना दिया। कई सख्त मुकाबलों के बाद सूबे ग्वांगडोंग के शहर यांगजियांग की टीम ने बेहतरीन कारकर्दगी और शानदार टीम वर्क की बदौलत चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। इस मौके पर ड्रैगन बोट फेस्टिवल कार्निवाल भी मुनक्किद किया गया, जिसमें इज्तिमाई ज़ियाफत, देवहेकल ड्रैगन बोट फूड स्पॉट, जोंगजी यानी चावल के रिवायती पकवान और हाथ से तैयार करदा खुशबूदार थैलियों के स्टॉल्स शामिल थे। इस सकाफती मेले ने 15,000 से ज्यादा अफराद को अपनी जानिब मुतवज्जह किया। मशरक़ी चीन के साहिली शहर श्यामन में मुनक्किद होने वाले एक अहम इक़्तिसादी और तजारती प्रोग्राम ने मेनलैंड चीन और ताइवान के दरमियान ताउन के नए दरवाजे खोल दिए हैं। इस मौके पर तय पाने वाले मुआहदों से मुख्तलिफ सनतों को नई तवानाई मिलने की तवक्को है। माहिरीन का कहना है ऐसे रवाबित न सिर्फ तजारत बल्कि अवामी सतह पुरएतमाद तबादलों और मुश्तरका तरक्की के मौक़े को फ़रोग़ देते हैं। मशरक़ी चीन के साहिली शहर श्यामिन में होने वाले एक अहम तिजारती और इक़्तिसादी राब्ता प्रोग्राम ने मेनलैंड और चीन के ताइवान के दरमियान ताउन के नए इम्कानात को रोशन किया है। इस तक़रीब में तय पाने वाले मुआहिदों से ताइवान की मुख्तलिफ सनतों को नई तवानाई मिलने और मकामी आबादी को बराह रास्त फ़वाइद पहुँचने की तवक्को ज़ाहिर की जा रही है। तक़रीब में दोनों किनारों के खरीदारों के पैदावारी शोबों के नुमाइंदों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया गया ताकि इक़्तिसादी तबादलों और तिजारती रवाबित को मज़ीद फ़रोग़ दिया जा सके। ये सरगर्मी अप्रैल में जारी किए गए 10 खुसूसी इक़दामात का हिस्सा है, जिनका मकसद आबनाए के दोनों जानिब अवामी रवाबित और ताउन को फ़रोग़ देना है। इन इक़दामात में नौजवानों, किसानों, माहीगीरों और छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारों की अमली ज़रूरियात को खुसूसी अहमियत दी गई है। तक़रीब में शरीक ताजरों का कहना था कि इनके मुआहिदों के इब्तिदाई नताइज ताइवान की मुताल्लिक़ा सनतों के लिए एक मजबूत मुहर्रिक साबित होंगे। इनके मुताबिक इक़्तिसादी ताउन न सिर्फ तिजारत को फ़रोग़ देता है बल्कि दोनों जानिब के लोगों के दरमियान बाहमी एतमाद, राब्ते और मुश्तरका तरक्की के मौक़े भी पैदा करता है। सिंकियांग की खूबसूरत सब्ज़ाज़ारों में रिवायती चरवाहा ज़िंदगी अब सयाहत के साथ जुड़कर मकामी मईशत को नई समत दे रही है। मकामी बाशिंदे मवेशी पालने के साथ साथ होम स्टे, घुड़सवारी और दीगर सयाहती सरगर्मियों के जरिए आमदनी हासिल कर रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक दही सयाहत का ये मॉडल मकामी लोगों के मयार ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने में अहम किरदार अदा कर रहा है।
شمال مغربی چین کے سنکیانگ ویغور خود اختیار علاقے میں واقع بائیں بولاک کی وسیع و عریض سبززار صدیوں سے مویشی پالنے والے خاندانوں کا گھر رہے ہیں، لیکن اب یہاں ایک نئی تبدیلی جنم لے رہی ہے، جہاں چرواہوں کی روایتی زندگی سیاحت کے ساتھ مل کر مقامی لوگوں کے لیے آمدنی کے نئے دروازے کھول رہی ہے۔ گرمیوں کے اس موسم میں بائیں بولاک کی چراگاہیں اپنی پوری رانائی کے ساتھ سیاحوں کو خوش آمدید کہہ رہی ہیں۔ مقامی باشندے بائن علی دیر، جن کا خاندان نسلوں سے مویشی پالنے سے وابستہ رہا ہے، اب ایک روایتی طرز کے ہوم اسٹے کے مالک ہیں۔ سیاحت کے روشن امکانات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنے یاک فروخت کر دیے اور اس شعبے میں قدم رکھا۔ اسی گاؤں کے ایک اور چرواہے ہارزیکے نے بھی اپنی 200 سے زائد بھیڑیں اور 40 سے زیادہ گھوڑے دیگر دیہات کے سپرد کر دیے اور خود سیاحوں کے لیے گھڑ سواری کے ٹورز کا حصہ بن گئے۔ ان کے مطابق ماضی میں آمدنی کا واحد ذریعہ مویشی پالنا تھا، لیکن اب سیاحت نے تقریباً ہر گھر کو فائدہ پہنچایا ہے۔ مئی کے وسط سے اکتوبر تک صرف سیاحتی سرگرمیوں سے سالانہ 50 سے 60 ہزار یوان تک خالص آمدنی حاصل ہو رہی ہے، جو مقامی خاندانوں کے معیار زندگی میں نمایاں بہتری لا رہی ہے۔ چین کے خود مختار علاقے شیجانگ میں ثقافتی اور قدرتی ورثے کے دن کے موقع پر پہلے 5 خود مختار سطح کے آثار قدیمہ پارکس کا افتتاح کیا گیا ہے۔ یہ مقامات ہزاروں سال پرانی تہذیب، تاریخ اور انسانی آبادیوں کے ارتقاء کی جھلک پیش کرتے ہیں۔ حکام کے مطابق ان منصوبوں کا مقصد نہ صرف تاریخی ورثے کا تحفظ بلکہ تحقیق، تعلیم اور عوامی آگاہی کو فروغ دینا ہے۔ چین کے خود اختیار علاقے شیزانگ میں ثقافتی اور قدرتی ورثے کے دن کے موقع پر علاقے کے پہلے 5 خود اختیار سطح کے آثار قدیمہ پارکس کا باضابطہ افتتاح کیا گیا۔ ان پارکس میں ایسے آثار قدیمہ کے مقامات شامل ہیں جو شیزانگ کی ہزاروں سال پرانی تاریخ اور تہذیب کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہیں۔ ان میں وسطی شیزانگ میں دریافت ہونے والا نیولتھک ایج کا پہلا مقام بھی شامل ہے، جبکہ ایک اور مقام سطح مرتفع پر جھیلوں کے کنارے آباد قدیم انسانی آبادیوں کی شکار پر مبنی ثقافت کی جھلک پیش کرتا ہے۔ علاقے کے ثقافتی ورثے کے بیورو حکام کے مطابق آئندہ مرحلے میں آثار قدیمہ کے مقامات کے تحفظ، تحقیقی سرگرمیوں، مطالعاتی دوروں اور عوامی سہولیات کی تعمیر کو مزید بہتر بنایا جائے گا تاکہ تحقیق کے نتائج عام لوگوں تک بھی پہنچ سکیں۔ چین کی مرکزی حکومت گزشتہ کئی برسوں سے شیزانگ کے ثقافتی ورثے کے تحفظ پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ اسی سلسلے میں پوٹالا محل میں محفوظ نایاب کھجور کے پتوں پر لکھی گئی قدیم دستاویزات سمیت تاریخی مخطوطات کے تحفظ اور استعمال کے منصوبوں پر 11 کروڑ یوان سے زائد کی سرمایہ کاری کی جا چکی ہے۔ رواں سال جنوری میں جاری ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق قومی سطح پر ثقافتی نوادرات کی چوتھی مردم شماری کے دوران شیزانگ میں 3346 نئے ثقافتی مقامات دریافت کیے گئے، جس کے بعد یہ علاقہ نئی دریافت کے لحاظ سے چین کے نمایاں علاقوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، دیکھتے رہیے GNN۔ ویلکم بیک۔ اب باری ہے سیگمنٹ چائنا رپورٹ کی۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں چین اور پاکستان کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر چائنا میڈیا گروپ اور چینی ثقافتی مرکز پاکستان کے اشتراک سے کوئز پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں شامل مہمانوں کا کہنا تھا کہ چین کی ترقی نہ صرف اپنے عوام بلکہ پورے خطے اور دنیا بھر کے لیے ترقی اور خوشحالی کے نئے مواقع پیدا کر رہی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان ثقافتی تبادلے عوام کو مزید قریب لا رہے ہیں اور باہمی دوستی کو مزید مضبوطی فراہم کر رہے ہیں۔ چین اور پاکستان کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ کے سلسلے میں چائنا میڈیا گروپ، کنفیوشس انسٹی ٹیوٹ نمل یونیورسٹی اور چینی ثقافتی مرکز پاکستان کے اشتراک سے نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز اسلام آباد میں ایک کوئز پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں طلباء نے بھرپور دلچسپی کا اظہار کیا۔ تقریب میں چینی سفارت خانے کے ثقافتی کونسلر چھن پھنگ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اپنے خطاب میں چھن پھنگ کا کہنا تھا کہ چین کی ترقی نہ صرف اپنے عوام بلکہ خطے اور دنیا کے دیگر ممالک کے لیے بھی ترقی اور خوشحالی کے نئے مواقع پیدا کر رہی ہے۔ اس موقع پر نمل کے ڈائریکٹر جنرل بریگیڈیئر محمد رفیق خان نے کہا کہ چین اور پاکستان کے درمیان تعلیمی اور ثقافتی تبادلے دونوں ممالک کے عوام کو مزید قریب لا رہے ہیں اور باہمی
دوستی کو نئی مضبوطی فراہم کر رہے ہیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے CGTN اردو چائنا میڈیا گروپ پاکستان کی نمائندہ وانگ لی نے کہا، چین اور پاکستان کی دوستی اتحاد، بھائی چارے اور باہمی اعتماد کی ایک روشن مثال ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ مزید مستحکم اور گہری ہوتی جا رہی ہے۔ اس موقع پر نمل کی فیکلٹی آف لینگویجز کے ڈین ڈائریکٹر جمیل اصغر نے CGTN سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چین اور پاکستان کی دوستی ہر آزمائش پر پوری اتری ہے اور دونوں ممالک کے تعلقات مستقبل میں مزید وسعت اختیار کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ آج کا پروگرام جو ہے بہت ہی امید افزا ہے، اور بچوں کی آپ نے پارٹیسپیشن دیکھی، ان کا جذبہ دیکھا، اور جس طرح ان نے سوالات کے جوابات دیے، دونوں ملکوں کے درمیان جو طلباء ہیں ان کے لیول کے اوپر، اسٹوڈنٹس کے لیول کے اوپر یہ ایک بہت اچھا پروگرام ہے، اور اس سے جو ہماری ایک سفارتی تاریخ ہے اس سے متعلق بچوں کو آگاہی ملے گی اور زیادہ سے زیادہ ان کی دلچسپی کا باعث بنے گا۔ وگرنہ ہم ویسے تو کنیکٹڈ ہیں آپس میں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کے لیول کے اوپر یہ ایک بہت ہی پازیٹیو انیشیٹو ہے، اور اس طرح کے انیشیٹیوز اگر زیادہ ہوں گے تو ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کو چین کی ثقافت کو سمجھنے کے لیے، چینی سماج کو سمجھنے کے لیے بہت مدد ملے گی۔ کوئز پروگرام میں شریک طلباء نے چین اور پاکستان کی تاریخ، ثقافت اور دو طرفہ تعلقات سے متعلق سوالات کے جوابات پر اعتماد انداز میں دے کر حاضرین سے بھرپور داد وصول کی۔ ریسنٹلی میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ایسے کمپٹیشن میں حصہ لیا تھا، اور اس میں نے ریسرچ کیا چائنا اور پاکستان کی دوستی کے بارے میں، اینڈ آئی فاؤنڈ اٹ اٹس امیزنگ، اٹس ریئلی ریئلی امیزنگ، کیونکہ پاکستان اور چائنا دونوں ہی آپ کہو ایک طرح سے ایک نیو کیا کہتے ہیں کنٹریز تھی، رائٹ؟ انہوں نے جس طرح آپس کی ہیلپ کی، جس طرح محنت کیا، جس طرح ایک دوسرے کو بیک اپ کیا، کہ they were like brothers or sisters or whatever you want to say, but it's really amazing. یہاں پہ اور بھی پرفارمنس ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ کوئز کمپٹیشن ہوئی۔ اس کوئز کمپٹیشن میں میں نے یہ کوئز کے صحیح آنسرز دے کے یہ بیگ جیتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ پاکستان اور چائنا کی دوستی بہت گہری ہے، اور ہم مزید امید کرتے ہیں کہ یہ اس سے زیادہ اور گہری ہوگی انشاءاللہ۔ ان ایونٹس کے تھرو پاکستان اور چائنا کی جو بانڈنگ ہے وہ اور اسٹرانگ ہوتی ہے، جس کے تھرو پاکستان کے اسٹوڈنٹس چائنیز کے کلچر کو جانتے ہیں، اور اس طرح پتہ چلتا ہے کہ چائنیز کلچر کیا ہے کیا نہیں ہے، اور اس طرح یہ ہر ایک اسٹوڈنٹ کو چاہیے یہاں ہر چیز پہ ایونٹ پہ پارٹیسپیٹ کرے اور ون کرے۔ تقریب کے دوران کنفیوشس انسٹیٹیوٹ کے طلباء نے رنگا رنگ ثقافتی پرفارمنس بھی پیش کی، جن میں چین اور پاکستان کی مشترکہ ثقافتی ورثے، باہمی احترام اور دیرینہ دوستی کی خوبصورت عکاسی کی گئی۔ تقریب کے اختتام پر چینی سفارت خانے کے ثقافتی کونسلر چھن پھنگ اور نمل کے ڈائریکٹر جنرل بریگیڈیئر محمد رفیق خان نے نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلباء میں انعامات تقسیم کیے، جبکہ کامیاب شرکاء نے اس سرگرمی کو چین اور پاکستان کے تعلقات کو بہتر انداز میں سمجھنے کا ایک مؤثر ذریعہ قرار دیا۔ پروگرام چائنا ٹوڈے میں اب چلتے ہیں آج کے اگلے سیگمنٹ نیو ویژن کی جانب۔ سائبر سینئر لائف بزرگ افراد کی دیکھ بھال کون اور کیسے کرے گا؟ آج ہم نیو ویژن میں ٹیکنالوجی اور بزرگ افراد کی دیکھ بھال کے حوالے سے خاموش مگر بڑی تبدیلی کا جائزہ لیں گے جو بزرگ افراد کی دیکھ بھال کے نظام میں انقلاب لا رہی ہے۔ دیکھیے اس رپورٹ میں۔ میں نے حال ہی میں چند چینی بزرگ افراد کا انٹرویو کیا جن کی عمریں 70 سے 80 سال کے درمیان ہیں۔ ان سے کہا کہ وہ ایک چیز کو نمبر دیں، پورے 10 نمبروں میں سے آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے کتنے نمبر دیے۔ آخر ایسی کیا چیز تھی جسے انہوں نے اتنے زیادہ نمبر دیے؟ جواب جاننے کے لیے دیکھیں ہمارا آج کا پروگرام۔ جب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اسی وقت ٹی وی اسکرین کے سامنے کروڑوں بزرگ اپنے گھروں میں اپنا دن گزار رہے ہیں۔ سال 2022 کے آخر کے اعداد و شمار کے مطابق جن میں ہر 4 افراد میں سے ایک بزرگ شہری ہے، اور اندازہ ہے کہ تقریباً سال 2032 تک جن باضابطہ طور پر شدید عمر رسیدگی والے معاشرے میں داخل ہو جائے گا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ بزرگوں کی دیکھ بھال کون کرے گا اور کیسے کرے گا؟ آج ہم ٹیکنالوجی اور بارسی کے باہمی امتزاج کے تناظر میں ایک ایسی خاموش
मगर बड़ी तब्दीली का जायजा लेंगे जो बुजुर्गों की देखभाल के निज़ाम में इंकलाब ला रही है। शायद इसका जवाब उसी इमारत के अंदर में मौजूद है। ये बीजिंग में कायम दुनिया का पहला रोबोटिक बुजुर्ग निगहदाश्त मरकज़। इस इमारत के अंदर में 40 से ज़ायद इक़साम के रोबोटिक मसनूआत मौजूद हैं जो खाना बनाने से लेकर सेहत की बाहरी की मशकों तक बुजुर्गों की देखभाल के हर पहलू में शामिल हैं। आइए हम अंदर जाकर देखते हैं। हम स्मार्ट किचन और डाइनिंग एरिया में पहुंच चुके हैं। यहाँ ऑर्डर देने से लेकर खाने तक पूरा अमल ज़हीन टेक्नोलॉजी पर मुबनी खिदमत फराहम करता है। खाना पकाने वाले रोबोट्स बावर्ची खाने के शेफ के बेहतरीन मददगार बन चुके हैं। उनके तैयार करते खाने रेस्टोरेंट में बहुत मकबूल हैं। खाना लेने के बाद AI मैनेजर प्लेट में मौजूद खाने को स्कैन करके फ़ौरन कीमत का हिसाब लगा लेता है। वाकई टेक्नोलॉजी का कमाल देखने लायक है। ये डिश रोबोट शेफ ने मियारी तरीक़ाकार के मुताबिक तैयार किया है। अब मैं टेस्ट करूंगी कि इसका जायका कैसा है। अच्छा है। तीसरी मंजिल इस इमारत का मरकजी हिस्सा है जहाँ जो सेहत की बहाली, तफरीह और यौमिया देखभाल की जमा सहूलियात मौजूद हैं। मेहमानों का इस्तकबाल करने वाला रोबोट स्याओरोंग न सिर्फ बुजुर्गों को मुख्तलिफ हिस्सों तक रहनुमाई फराहम करता है बल्कि उनके मुख्तलिफ सवालात के जवाब भी दे सकता है। मसाज रोबोट्स इंतहाई दुरुस्तगी से खिदमत फराहम करते हैं और पेशावर मारिजिन जैसी सेफ्री फराहम करते हैं। सेहत की जांच के आलात तेज़ी से मुतअद्दिद अशारियों की जांच मुकम्मल कर लेते हैं। शतरंज खेलने वाला रोबोट न सिर्फ बुजुर्गों के साथ खेलकर उन्हें ज़हनी मशक करवाता है बल्कि उनके लिए एक खुशगवार और गर्मजोशी साथी भी बन जाता है। इन रोबोट साथियों के बारे में बुजुर्ग बेहद तारीफ करते नजर आते हैं। ये मशीन न सिर्फ रिवायती चीनी तिब के मुताबिक मुआयना कर सकती है बल्कि जदीद तिब्बी सहूलियात भी फराहम करती है। वाकई ये बहुत जदीद मशीन है। ये मशीन इंसानों के अंदाज की नकल करती है। इस मशीन का मालिश का अंदाज और तहकार बेहतरीन है और ये बिल्कुल दुरुस्त जगह पर मालिश करती है। आप देख सकते हैं कि ये मसाज करने वाला रोबोट अब खिदमत फराहम कर रहा है। ये बुजुर्गों की सेहत के लिए इंतहाई जो फ़ायदेमंद है। और उधर उस रूम में जो शतरंज खेलने वाला रोबोट बुजुर्ग के साथ मुकाबला कर रहा है। ये पूरा मंजर टेक्नोलॉजी और इंसानी जज्बात के इम्तिजाज है जो खुशहाल बरहबन के तस्वुर को एक नई जिहत देता है। यहाँ एक चौथी मंजिल भी है जो कि बहुत अच्छी है। वहाँ बुजुर्गों की निगहदाश्त के लिए एक खुसूसी बिस्तर मौजूद है जिसमें बहुत सी सहूलियात हैं। वाकई बुजुर्गों की जिंदगी के मेयार में दिन ब दिन बेहतरी आ रही है। आंटी ने मुझे बताया है कि यहाँ जो घरेलू माहौल में उम्र रशीदा अफराद के लिए मौजूद पब्लिक मॉडल रूम है, तो अंदर में क्या क्या सहूलियात मौजूद हैं, हम इकट्ठे देखते हैं। ये छोटा सा कमरा बगैर लुगावट डिज़ाइन, स्मार्ट व्हीलचेयर, हाउस मॉनिटरिंग सिस्टम और पूरे घर की ज़हीन टेक्नोलॉजी से लैस है। घरेलू ज़िंदगी में बुजुर्गों को दरपेश मुश्किलात जैसे गिरने से मुतालिक पेशगी वार्निंग, दायमी बीमारियों का इंतज़ाम और हंगामी मदद के लिए यहाँ ज़हनी रोबोटिक हल तलाश किए गए हैं। फारिज बुजुर्गों में पाई जाने वाली आम बीमारियों में से एक है। यहाँ मौजूद एक्सोस्केलेटन रोबोट फालिज के मरीजों को ऑपरेशन के बाद बहाली की मशकों में
मावन फराहम करते हैं। ये रोबोट मुझे ताकत फराहम कर रहा है और इसकी मदद से स्टेयर रखने में कोई थकावट नहीं होती। तो इस रोबोट की मदद से उम्र रशीदा अफराद आज़ादी से चल फिर सकते हैं। इस मरकज़ में मौजूद मुख्तलिफ स्मार्ट रोबोटिक सहूलियात न सिर्फ बुजुर्ग अफराद की रोज़मर्रा ज़िंदगी को ज़्यादा आसान और महफूज बनाती हैं, बल्कि जज्बाती सहारा और साथ भी फराहम करती हैं, जिससे बुजुर्गों की ज़िंदगी में खुशी और दिलचस्पी के कई नए रंग शामिल हो गए हैं। खाना पकाने से लेकर सेहत के तहफ़्फ़ुज़ तक ये इमारत हमें हकीकी मानों में रोबोटिक बुजुर्ग निगहदाश्त के इम्कानात को महसूस कराती है। इस वक्त चीन में बुजुर्ग निगहदाश्त रोबोट्स के शोबे से वाबस्ता हज़ारों कंपनियां मौजूद हैं, जो टेक्नोलॉजी के ज़रिए बुजुर्गों की मावंत को महदूद और महंगे दायरा से निकालकर आम लोगों तक पहुंचा रही है। यहाँ हमने न सिर्फ टेक्नोलॉजी की हदूद को वसी होते देखते हैं, बल्कि इस एतमाद को भी महसूस कर सकते हैं कि बुजुर्गों को सहारा और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सकता है। बीजिंग में कायम ये स्मार्ट रोबोटिक बुजुर्ग निगहदाश्त मरकज़ ने रोबोट्स को लैब से निकालकर हकीकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बना दिया है। ये मंसूबा टेक्नोलॉजी प्लस बुजुर्गों की देखभाल के इंतज़ाम के मैदान में एक तख्लीकी और नुमायां कदम है और मुल्क भर में स्मार्ट बुजुर्ग निगहदाश्त सिस्टम की तामीर के लिए एक ऐसा नया मॉडल पेश करता है जिसे आसानी से अपनाया और फ़रोग़ दिया जा सकता है। मुतालिका इदारों की पेशगोई के मुताबिक साल 2050 तक चीन में बुजुर्ग आबादी की मजमूई खपत मुल्क की मजमूई GDP के तकरीबन 20% तक पहुंच सकती है। सिल्वर इकॉनमी सिर्फ समाजी बहबूद का मसला नहीं, बल्कि कौमी मईशत का एक अहम मौजू भी बन चुकी है। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, देखते रहिए GNN। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में अब बारी है सेगमेंट चाइना ट्रैवल की। आर्ट स्ट्रीट पुरानी इमारतों पर बनने वाला आर्ट, ऐसा इलाका जहां आप आसानी पूरा दिन लुत्फानंदोज होकर गुजार सकते हैं। बीजिंग में अगर आप सबसे जदीद, फनी और सबसे फैशनेबल इलाका देखना चाहते हैं तो आपको कहां जाना चाहिए? इस सवाल का जवाब जानते हैं आज के चाइना ट्रैवल में। बीजिंग में अगर आप सबसे जदीद, सबसे आगे, सबसे फनी और सबसे फैशनेबल इलाका तलाश करना चाहें तो आप कहां जाएंगे? शायद इसका जवाब 798 आर्ट स्ट्रीट ही है। यहाँ बहुत तर्ज तामीर के कारखाने आज भी महफूज हैं। ये कभी रेडियो साजो सामान के मुश्तरका कारखाने हुआ करते थे और अवामी जमहूरिया चीन की इलेक्ट्रॉनिक सन्नत की बुनियाद भी यही थी। आज ये एक ऐसा आर्ट इलाका बन चुका है जहां आप बाआसानी पूरा दिन गुजार सकते हैं। जब करचती हुई मशीनों की आवाज़ें सुन की गूंज में बदल जाएं और ठंडे कारखानों की दीवारों के अंदर एक जदीद रूह जन्म ले, तो यही है 798 आर्ट स्ट्रीट। आज आइए हम इस अफसानवी जगह में दाखिल होते हैं जहां सन्नत और फिल्म एक साथ परवान चढ़ते हैं और देखते हैं कि चीन में पुराने कारखानों को किस तरह नई जिंदगी देकर शहरी सकाफत को फरोग दिया जाता है। आप देखें ये तंतानेदार छत और बड़े बड़े रोशनदान। बीजिंग का 798 आर्ट स्ट्रीट न सिर्फ चीन की सन्नती तारीख की तरक्की का गवाह है, बल्कि अपनी वसी जगह, मुनफरद बहुत तर्ज तामीर
और सेंट्रल एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स के करीब वाक़ होने जैसे फवायद की बदौलत बड़ी तादाद में फनकारों और फनी इदारों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है और यूं फनकारों की नज़र में यह एक बेहतरीन कैनवस और स्टेज बन चुका है। सन 2001 में जब सनदी ढांचे में तब्दीली आई तो कम कराइयों और मुनफरद सनदी जमालियात ने पहली मर्तबा फनकारों और इदारों को यहाँ आने पर आमादा किया। बाद यूसीसी आर्ट सेंटर की आमद ने इस मकाम को चीनी असरी आर्ट और दुनिया के दरमियान मुकाबले की एक अहम खिड़की बना दिया। ये फन का अजीम मरकज जो एक पुराने कारखाने को तब्दील करके बनाया गया है, वक्त और जगह की हदों को तोड़ देता है और सनदी वर्षे और जदीद फन के दरमियान एक नहायत मुतासिरकुन मुकालिमा कायम करता है। आज 798 आर्ट स्ट्रीट में 20 से ज़ायद मुमालिक के 500 से ज़्यादा फनी इदारे मौजूद हैं। बैनुल-अक़वामी फनकारों के शाहकारों से लेकर उभरते हुए फनकारों के जदीद तजुर्बात तक ये मकाम अब टाइम मैगजीन की जानिब से दुनिया के 22 नुमायां सकाफती आर्ट मराकज में शामिल किया जा चुका है और आलमी सतह पर चीनी मुआसिर फन को समझने का एक अहम तरीन तरीका बन गया है। ये जंग आलूद रैर का इंची 798 आर्ट डिस्ट्रिक्ट का सबसे दिल को छू लेने वाला यादगार निशान है। ये कभी कारखाने के इलाके में नकलो हमल की शहरत था और आज खामोशी से खड़ा होकर सनदी दौर की एक दायमी यादगार बन चुका है। जिंगबा दोस्ती जिंदाबाद। अगर ये कहा जाए कि कारखाने और आर्ट गैलरीज फन के माबिद हैं, तो गलियां खुद फन का मैदान है। 798 की असल कशिश इसी हर तरफ मौजूद आज़ादी में है। सुरख ईंटों की दीवारों पर बेसाख्ता ग्राफिटी और गली के मोड़ पर नस्ब अजीम मुजस्मे। यहाँ फन किसी बुलंद मकाम तक महदूद नहीं रहता, बल्कि हर शहर के लिए महसूस करने, छूने और इसमें हिस्सा लेने वाला रोजमर्रा तजुर्बा बन जाता है। सन 2001 में जब सनदी ढांचे में तब्दीली आई तो कम कराइयों और मुनफरद सनदी जमालियात ने पहली मर्तबा फनकारों और इदारों को यहाँ आने पर आमादा किया। बाद यूसीसी आर्ट सेंटर की आमद ने इस मकाम को चीनी असरी आर्ट और दुनिया के दरमियान मुकाबले की एक अहम खिड़की बना दिया। संजीदा आर्ट गैलरी के साथ ही एक आरामदेह कैफे है। जदीद फनी तंसीबात के बराबर ही कोई दिल को सुकून देने वाली तख्लीकी मसनूआत की दुकान मौजूद है। ये जगह बुलंद और दूर महसूस होने वाले फन को जमीन पर ले आती है। इसे बीजिंग के लोगों की रोजमर्रा सकाफती जिंदगी का हिस्सा बनना देती है। फन की खुशबू से भरपूर 798 आर्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक कोशा ऐसा भी है जहां पाकिस्तान की अपनी रंगीनी और जिंदगी की झलक मौजूद है। जब आप इस आर्ट डिस्ट्रिक्ट में घूमते घूमते थक जाएं और इस जिंगबा दोस्ती के रेस्टोरेंट में दाखिल हो तो एक और तरह का सुकून मिलता है। ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट इस आर्ट डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तानी सकाफत की इलामत है। असली पाकिस्तानी जायका और मुनफरद सकाफती रंग बिल्कुल इसी तरह 798 आर्ट डिस्ट्रिक्ट के इस मिजाज की अक्कासी करते हैं जो खमाकीर सरहदों से मावरा और गसेरूर सकाफती है। यहाँ पाकिस्तानी कढ़ाई और नान जैसे बहुत से मज़ेदार खाने मिल सकते हैं और लोग यहाँ पाकिस्तानी सकाफत के मुख्तलिफ रंगों का तजुर्बा भी कर सकते हैं। 798 आर्ट डिस्ट्रिक्ट सिर्फ जदीद फन का मरकज ही नहीं बल्कि दुनिया भर से आने वाली सकाफतों और मोहब्बत को अपने अंदर समो लेता है।
अवामी आर्ट की स्ट्रीट तक। 798 आर्ट की स्ट्रीट की कहानी शहरी तजदीद का एक मुआजिज़ा है। ये मजबूत सन्नती वर्षे को अपनी बुनियाद बनाते हुए जदीद फन की रूह को अपने अंदर समाये हुए है। यूं खामोश सन्नती आसार को नई जिंदगी मिली है और रिवायतों जिद्दत यहाँ एक साथ हम आहंगी के साथ परवान चढ़ रहे हैं। बीजिंग के माजी और मुस्तकिल को अपने अंदर समाये इस फनी मकाम में खुशामदीद। अगर आपको मौका मिले तो जरूर यहाँ आए, माजी के सन्नती आसार छूकर देखें, जिंदा और मुतहरिक जदीद फिल्म से मुलाकात करें और बीजिंग की लाजवाब तहलीकी सलाहियतों को महसूस करें। चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मज़ीद तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।